कार्यकर्ता। नानू को ज़्यादा मत खिला ना। हाँ वीडियो बना ले रहा हूँ। तो जल्दी अब अम्मी को लो जल्दी से चले अभी तक आएगी नहीं हो यहीं गोदाम में तो आएगी नहीं हो हाँ आ जाओ जल्दी लेट आ राना पी सर में दुपट्टा डालिए जल्दी। सर घूम जाओ पास में खड़े हो जाओ। बन रही वीडियो बन रही। ओके सर केक लीजिए आप। आप लोग बैठ लेंगे आपको मिल गया भैया all teachers and staff. I wish very much happy New Year to you all. Almost 8 years passed by when I granted something. Honorable Deputy Sir, staff and teachers, wish you very happy New Year to you all. थैंक यू सर सेम टू यू। It is more than a decade that has gone by when I planted a sapling of this school. Now it has almost grown into a tree and it is progressing every day and night. Lot of infrastructure has come up. Number of staff has also increased. Number of students have also increased. Now almost everything is achieved. Affiliation to the UP government, that is also achieved, and maybe in future it may be affiliated to CBSE also. Now what I have to say today, that only thing we have to improve the academics of the standard of the school. People should think at once that this is the best school and they take down their words for admission to this school. It has to come up to this level. And education is changing better now. It is not as it used to be in our times. Now it is very much innovative. I quote an example I saw in an interview of some state service. The director asked the student, what is knowledge? Knowledge and information, the two things are different. When India got freedom, that is not knowledge, that is information. When Gandhiji was born, when he died, which is the longest platform, this is all information you need not by heart. This is all information. Knowledge is different thing. Knowledge, as in interview, one of the students, he answered, he was questioned, अगर गांधी जी आज जिंदा होते तो क्या करते, क्या कर रहे होते? This was the question asked to the student. Then he said, वो आज गवर्नमेंट से लड़ रहे होते, माइनॉरिटी और दलित के राइट्स के लिए वो आज लड़ रहे होते और उनको अल्टीमेटली एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया होता और उनको यहाँ से भगा दिया गया होता पाकिस्तान।
पाकिस्तान में क्या कर रहे होते, वो वहाँ की गवर्नमेंट से लड़ रहे होते, वहाँ की माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए। फिर यहाँ रियलाइज करते कि नहीं, ही इज़ वेरी मच इंडियन, और उसको वापस बुलाते हैं, उनको दोबारा सिटीजनशिप देते। दिस इज इनोवेटिव थिंकिंग, इमेजिनेटिव थिंकिंग। रेस्ट इज इंफॉर्मेशन। ये खनिज पदार्थ कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये सब तुम्हारे मोबाइल के अंदर बन रहा है। टेक इट आउट, इंफॉर्मेशन यू विल गेट, बट यू विल नॉट गेट इनोवेटिव थिंकिंग, imaginative thinking you will not get. So our endeavor should be to prepare the students to this level, to innovative level, not just learning what is what. Innovative, to make their minds mobile. They should think. So our endeavor should be to bring the school to that level. That's all. Thank you. No, you have to say something too. She is my daughter, teacher in DPS now. She may have more, since I am not from education department and she is from education, she may have some idea. I request her to say गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। और आप सबको बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर और शुभकामनाएं मेरी, क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो मेरे पास और कुछ बोलने को है नहीं एजुकेशन के अलावा। और अगर आप, क्योंकि वो चाहते हैं कि शायद आप लोग को मुझसे कुछ टेक अवे मिले, कुछ ऐसा जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आई वुड से कि आई स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल स्कूल्स और उस वक्त बहुत पैशनेट भी नहीं। ओवर द ईयर्स जितना इस फील्ड में इन्वॉल्व होते गए तो लगा कि अरे अभी तो कुछ नहीं आता, अभी और कुछ करना है, अभी कुछ और सीखना है, और बहुत साल हो गए इस फील्ड में। और एक ही चीज़ समझ में आई कि जो भी काम आप कर रहे हैं स्पेशली इस फील्ड में, तो उसमें जैसे इन्होंने कहा इनोवेशन की ज़रूरत है। और एक चीज़ और मुझे लगती है, इनोवेशन तो वो है जो आपको शायद आपके रिसोर्सेज जो स्कूल से मिलते हैं या जो मौजूद हैं आपके आसपास वो आप यूज़ करते हैं। एक चीज़ और चाहिए, उदासीनता नहीं होनी चाहिए, बहुत पैशनेट होना चाहिए अपने काम के लिए, मैम कि आप एक वक्त में बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत सारे लोगों पर असर डालते हैं, चाहे वो आपकी नॉलेज हो। नॉलेज थोड़ा कम पार्ट है, पूरा ओवरऑल पैकेज जो होता है ना, जो आप कैसे दूसरों से बात करते हैं, अपने आसपास के लोगों को सम्मान देते हैं, रिगार्ड्स देते हैं, या अपने फील्ड में आप कितना इन्वॉल्व होते हैं नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, सब असर डालता है आसपास के लोगों को, बच्चों को भी। तो क्योंकि हम बच्चों से डील कर रहे हैं, स्टूडेंट्स से डील कर रहे हैं, जो आने वाला समाज है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप उदासीन ना हो बल्कि अपने काम में इन्वॉल्व हो। एंड क्योंकि आज का दिन सबको बधाई देने का है, मेरे लिए एक चीज़ और है यहाँ मेंशन करने को। मेरे स्कूल में एक बच्चा पिछले 10 दिन से नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको किसी की कोई बात लग गई, बुरी लग गई अपने आसपास, कुछ हुआ ऐसा कि वो डिप्रेशन में चला गया। मगर आज सुबह पहली चीज़ मॉर्निंग में उसका मैसेज पढ़ा था, 10 दिन के बाद उसने पहला कोई मैसेज स्कूल के लिए किया। तो क्योंकि इस बीच में हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे उसके पेरेंट्स से, उस बच्चे से, आज उसका असर दिखा, और शायद वो बच्चा 2-4 दिन के बाद जब भी स्कूल खुलेगा वो आए। तो कहीं ना कहीं अपने काम के पीछे लगना पड़ता है, और बच्चे रिस्पॉन्स देते हैं। शायद यही एक फील्ड है जहाँ बड़ी जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। क्लास में आपने कोई चीज़ सिखाई और अगर उन्होंने समझ ली तो आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा कि वो चीज़ को कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जिस फील्ड में भी आप हैं, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों को प्रभावित करने की, असर डालने की, तो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करें। और ये कर करके शायद ये स्कूल यहाँ तक आया है। तो ऑल द बेस्ट विशेज़, जिस तरह स्कूल जा रहा है उसी दिशा में आगे बढ़े। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई बात नहीं, मुझे लगा कि सब कंफर्टेबल। कोई टीचर हमारे साथियों में अगर आना चाहे तो 2 शब्द प्रकट करें। प्रिंसिपल साहब कोई भी आई।
कॉलेज मिस्टर प्रदीप कुमार। मेरी तरफ से चीफ गेस्ट फाउंडर, मॉडर्न पब्लिक स्कूल के फाउंडर एंड डायरेक्टर सगीर चच्चा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वह यहाँ पर आए सभी सम्मानित गेस्ट, उनको मेरी तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मीडियम पे कोई है? मोहतरम सदर आली वकार जनाब सबीर अहमद साहब, हमारे इस स्कूल के इस इदारे के मुंतज़िम जनाब दिलशाद अहमद बच्चा सर, और बरसा बरस से इस इदारे की खिदमत करने वाले और अपने तजुर्बे से कदम ब कदम हमारी रहनुमाई फरमाने वाले जनाब नजमुद्दीन साहब, और आप तमामी मेहमान को मोहब्बतों से लबरेज नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसा कि आपको मालूम है कि न सिर्फ नए साल को मनाने के लिए बल्कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब का यहाँ आज सालगिरह भी मनाया जा रहा है, तो अपने पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपकी लंबी उम्र की कामनाएं करते हुए आपको जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसा कि हमारे मजीद साहब का हुक्म था, उनकी ये ख्वाहिश थी, तो किसी एक गीत की 2-3 लाइनें पेश करने की आपके सामने कोशिश करता हूँ। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। जिंदगी से कैसा शिकवा खुद से ही शिकायत है, जिंदगी से कैसा शिकवा खुद से ही शिकायत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। कितने रंग हैं जीवन के ये अजब कहानी है, कितने रंग हैं जीवन के ये अजब कहानी है। कुछ मिले तो कुछ खो जाए, रीत ये पुरानी है, रीत ये पुरानी है। किसको क्या मिला यहाँ सब अपनी अपनी किस्मत है, किसको क्या मिला यहाँ सब अपनी अपनी किस्मत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। शुक्रिया। गए हैं, शायद इनकी ईमानदारी और इनकी मेहनत लगन से इनको ये नौकरी मिली। जाने कितने रह गए, लेकिन उन्होंने नंबर मार दिया पहले। हाँ, आज जैसे ये पहले से ही बहुत परंपरा चली आ रही है कि चचा का जन्मदिन हम सब इकट्ठा होते रहे हैं, तो और एक खुशी का अवसर ये भी था कि हमें सर ने मैनेजर सर से मालूम बोला कि 9 से 12 तक की मान्यता उन्हें मिल गई है गवर्नमेंट से। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और उसी दिन हमारी बात हो गई थी, ये हुआ था कि हम जरूर आएंगे भाई। कहा था कि पुराने स्टाफ सभी आएंगे, तो काफ़ी चेहरे नहीं दिख रहे हैं और उसे बुलाया गया होगा, सबको डिस्टर्ब की वजह से ना आ पाए होंगे। और हमारे पहले जितने स्टाफ बैठे हुए हैं और नए स्टाफ भी शामिल हो गए हैं काफ़ी लोग, तो मैं सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और चचा को जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। जैसे विनायक सर ने गीत गाया कि आपकी इनायत है,
तो वाकई ये आज हम जो कुछ भी, सही बात है, ये यहीं से सब कुछ मिला है हमें। अगर यहीं यहाँ हम लोग ये शुरुआत न किए होते, यहाँ हमें मौका न दिया होगा, तो शायद आज हम यहाँ ना होते जहाँ हम पहुँच गए हैं। ये सब हमें स्कूल की देन है, हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, बच्चा बैठे हुए, मैनेजर बैठे हुए, हमारा स्टाफ बैठा हुआ है। ये सब इन्हीं से नॉलेज शेयर कर करके हम लोग एक बूंद बूंद इकट्ठा करते गए और फिर हमें जो कुछ मिला सब यहीं से मिला। हम ये नहीं थे जो पहले 5 साल में हमने इकट्ठा किए, जो हम निकल गए तो सब यहीं से इकट्ठा किया, यहीं से पाया पूरा नॉलेज। 2010 की बात है, हम बीएड का एग्ज़ाम दे करके रिजल्ट नहीं निकला था यहाँ आगे, और स्कूल बन रहा था और जुलाई अगस्त से शुरुआत हो गई थी पढ़ाई की। तब से लेकर के 2015 तक, जनवरी 15 में हम लोग चले गए थे, तब तक इसकी सेवा की है बराबर। और बच्चों को अपना भरसक जो भी उसमें काफ़ी चुनौतियाँ होती हैं, तो हम इसको अभी भी याद करते हैं अपने स्टाफ को कि वहाँ होते थे तो एक कमेटी, एक मैनेजमेंट पीछे से होता था, पूरा सपोर्ट करता था, हमें खुली छूट होती थी पढ़ाने के लिए। अब वहाँ पहुँच गए हैं तो हमें खुली छूट पढ़ाने के लिए नहीं होती है, हाथ बने रहते हैं। इतने काम दे दिए जाते हैं कि हम चाह करके भी नहीं पढ़ा पाते, बच्चे खेलते रहते हैं। गार्जियन आकर हमें शिकायत करते हैं कि सर आप बैठिए बताओ, और बच्चे खेल रहे हैं। तो अब मजबूरियाँ होती हैं, तो यहाँ की याद आती है हमें। लोग कहते हैं कि जब आप प्राइवेट में तो बहुत पढ़ाते थे, आपका नाम सुना, बहुत पढ़ाई करते थे, यहाँ आके क्या हो गया आपको? तो कुछ मजबूरियाँ होती हैं। यहाँ ये होता था कि सब कुछ संभालने वाले पीछे रहते थे हमारे, हम खूब पढ़ाते थे। तो आज भी हमें ऐसी बात नहीं, कस्बे में काफ़ी लोग पहचानते हैं, जानते हैं, और बच्चों को जिनको पढ़ाया वो भी मानते हैं, उनके पेरेंट्स भी मानते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जय हिंद। ऑनरेबल नजमुद्दीन सर, प्रिंसिपल सर, माय कलीग्स, सबसे पहले मैं सर को जन्मदिन की पुनः बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा। साथ ही सबको नए वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी न्यू ईयर। विद्यालय आज 12th के लिए, इंटरमीडिएट के लिए रिकग्नाइज हो चुका है। इसके पीछे ऑनरेबल मैनेजर सर और सारे स्टाफ की बहुत सालों की और बहुत कड़ी मेहनत है। पिछला जो कोविड का टाइम था, इस टाइम पे कई विद्यालय तो बंद तक हो गए, लेकिन सर हमारे लगे रहे। मैनेजर सर, उन्होंने अच्छी मेहनत करी और आज जो भी है, मैंने और भी कई स्कूलों में पढ़ाया और पढ़ा रहा हूँ जैसे, लेकिन जितना स्वतंत्रता और जितना सपोर्ट इस स्कूल में मिलता है पढ़ाने के लिए और हर तरह से, कि कभी भी हमें ये फील नहीं हुआ कि हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। हमेशा ये लगता है कि हम साथ में काम कर रहे हैं, एज ए फैमिली काम कर रहे हैं, और वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो हमें इनकरेज करती है अपना और बेटर देने के लिए। साथ ही जैसा अभी मैम ने कहा कि एज ए टीचर आपको इनोवेशन और एक बच्चों से कनेक्ट करना चाहिए। हम लोग भी वही ट्राई करते हैं बच्चों से कनेक्ट करने की, ताकि बच्चे आएँ, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, हम उनको और इम्प्रूव कर सकें। जैसे भी हो, हम एज ए फैमिली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये 2023 में हम और ही आगे जाएं और अगला साल हम और ही ज़्यादा सक्सेस के साथ मनाएं। थैंक यू। प्रेसिडेंट सर से रिक्वेस्ट करूँगा वो अपने विचार करें। आइए। आज नए वर्ष है और इसी मौके पर सर का जन्मदिन भी है, तो मैंने सबसे पहले मैं सर को बर्थडे विश करना चाहूँगा, हमारे चचा सर सकीर सर को। और इसके अलावा जो हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं और जो प्राचार्य महोदय हैं और जो मैनेजर साहब हैं और जो आए हुए टीचिंग स्टाफ है और जो शिक्षकगण बैठे हुए सभी लोगों को और अतिथिगण बैठे हुए उनको आज हैप्पी न्यू ईयर। और मेरा ये स्कूल में पहला अनुभव है, स्कूल में तौर पे पढ़ाने पे। इससे पहले ही मैंने पढ़ाया है, पर स्कूल के तौर पे मेरा पहला एक्सपीरियंस है। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। एक चीज़ मैंने काफ़ी अच्छे से यहाँ ऑब्जर्व की है, जो डिग्निटी होती है अध्यापक लोगों की, वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं हुई आज तक इस स्कूल में। डिग्निटी बहुत ज़रूरी होती है काम करने के लिए, इंसान के लिए, जिसे हम डिग्निटी और लेबर भी कहते हैं। तो वहाँ पे बहुत अच्छा सम्मान के साथ सभी लोग काम करते हैं। बच्चों से जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी अच्छा काफ़ी है। और सर ने बहुत अच्छी बात कही शुरुआत में कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, और हमने पढ़ा भी है कि इल्म एक रोशनी होती है जो हमें
उजाला देती है। ज्ञान क्या होता है, एक परम आनंद की तरफ लेके जाता है इंसान को। तो बहुत अच्छी बात है। इन्फॉर्मेशन तो बहुत लोग दे पा रहे हैं, आज मोबाइल फोन हमारे हाथ में है, इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ में है, बट ज्ञान हमारे हाथ में नहीं, उसके लिए गुरु की इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, कबीरदास ने कहा है गुरु के बिना सब कुछ अधूरा है। तो गुरु जो होता है, पहला जो मिलता है माँ का मिलता है गुरु, उसके बाद तो हमारे स्कूल का जो गुरु होता है, स्कूल से हमें शिक्षक मिलते हैं, वो हमारे गुरु के जीवन के असली गुरु वो होते हैं जो हमें मार्ग दिखाते हैं। इसलिए अध्यापक का जो रोल होता है बहुत अहम होता है। वो एक सड़क जैसा होता है जो कहीं नहीं जाता है लेकिन सबको उसके मंजिल पहुँचाता है। अध्यापक एक सड़क है जो कहीं नहीं जाता, पर उसकी जो मंजिल है बाकी लोग चलने वाले उनको वहाँ तक पहुँचाता है। तो शिक्षा का महत्व सिर्फ ये नहीं कि हमें पढ़ लिख के नौकरी लेना है। द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट गेट जॉब। अपने आप को अवेकन करना है, जागरूक करना है। अवेकन जैसे कि बहुत से लोग अवेकन हुए, बुद्धा अवेकन हुए, 7 साल तपस्या करके 7 साल उन्होंने ध्यान किया। तो अवेकन करना हमारा शिक्षा का महत्व होना चाहिए। जो क्रिएटिविटी आती है बच्चों के अंदर वो कैसे लाई जाए। इन्फॉर्मेशन तो हर जगह मिल रही है, बहुत से लोग आप तो यूट्यूब भरा पड़ा, यूट्यूब में चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बट ज्ञान जो हो समथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इन्फॉर्मेशन, जो हमें शिक्षक से मिल सकती है, जो गुरु से मिल सकती है। ज्ञान बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है, ज्ञान मिल नहीं पाएगा। तो मेरे यही अंतिम शब्द हैं और पुनः सबको न्यू ईयर की शुभकामनाएं। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सर को विश यू है वेरी हैप्पी बर्थडे एंड ऑल ऑफ यू रिस्पेक्टेड। सर मैं न्यू ईयर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा। बस इसी नई सोच के साथ विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर।